ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ This ਸਾਹਿਬ। call is now being recorded. ਭੇਜ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੀਤ ਲਈ केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब, केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृतियों का मिलन बिंदु, विज्ञान दृष्टि धारण करके देश विदेश की समझ बढ़ाता, का ये निर्माता, विश्व भर विश्व प्रभाव सिखाता तेरी शान, तेरा मान है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय विज्ञान अनुसंधान। पिन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। पंथ वसे में उजड़ा मन चाओ कनेरा। ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ IQAC ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਧੀਮਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਲ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਜਨ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 1704 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਜੋਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੰਮੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲਕਬ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਜ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਕਬ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਇਆ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਬਸ एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। श्री गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਮਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੋਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜੋ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ। शुक्राना डॉक्टर रमनदीप कौर जी। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद तिवाड़ी जी, अध्यापक साहिबान, खोजार्थी विद्यार्थियों, आपके चरणों में मेरी फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि उस पवित्र स्थान से आप सभी लोग इस वक्त दूर हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा घर नज़दीक है। सुबह उठा 9 बजे मैं फतेहगढ़ साहब पहुँचा, शहादत के स्थान पर प्रणाम किया और केंद्रीय यूनिवर्सिटी पंजाब की सलामती के लिए गुरु महाराज के चरणों में अरदास की। ये यूनिवर्सिटी बढ़े फूले, इसकी कीर्ति दुनिया में फैले, इसके अध्यापक मेहनत से पढ़ाएं, विद्यार्थी अपने अध्यापकों का कहा माने, उनकी बातें समझें और सभी की ज़िंदगी सुखदायी हो। ये साहबजादों के शहीदों के चरणों में मैंने अरदास की और वो इतने मेहरबान हैं कि हमारी कमियों के बावजूद हमें सुखी जीवन देंगे, इज्जत देंगे, इस यूनिवर्सिटी की शोभा बढ़ेगी। सोचता रहा था अपने श्रोताओं से किस बात से शुरू करूं ये आज की गुफ्तगू। बोधवाक याद आया। बोधवाक है, पल और युग दोनों में कोई फर्क नहीं, क्षण और युग में कोई फर्क नहीं। जिस भाग्यशील क्षण को इस बात की समझ लग गई वो युग हो गया। जिस अभागे युग को इस बात का पता न चला वो एक क्षण की तरह नष्ट हुआ। साहबजादे वो क्षण हैं जो युग हो गए। 7 साल और 9 साल की उम्र छोटे साहबजादों की। हम 80 साल 90 साल 100 साल की उम्र बिता के संसार से इस तरह जाएंगे जैसे कभी आए ही नहीं थे। और साहबजादे वो इस तरह संसार से गए कि कभी गए ही नहीं, कभी जाएंगे ही नहीं। सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि बड़े साहबजादे दो छोटे साहबजादे, एक सप्ताह के अंदर अंदर चारों की शहादत हुई थी। सिख इतिहास में इस दुखदाई हफ्ते को शहीदी साता या शहीदी सप्ताह कहा जाता है, क्योंकि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर 4 साहबजादे और माता गुजरी जी इस संसार से विदा हो गए थे। चारों साहबजादों से ज्यादा छोटे साहबजादे बार बार याद आते हैं। शहादत तो शहादत है, ये नहीं कि छोटों की शहादत अलग किस्म की थी, बड़ों की अलग किस्म की। तो फिर छोटे साहबजादे ज्यादा याद क्यों आते हैं? मैंने सोचना शुरू किया, इस बात पर इस नतीजे पर पहुंचा कि बड़े साहबजादे बड़े थे, अपने फैसले खुद करने के योग्य थे, समर्थ थे। और छोटे 7 साल की और 9 साल की उम्र में तो कोई फैसला और इस तरह का फैसला ले नहीं सकता। उन्होंने इतने बड़े फैसले लिए। हमारे पास जितने सोर्सेज हैं, सिख सोर्सेज कम हैं, मुगल सोर्सेज हैं, कहीं भी किसी सोर्स में ये बात नहीं आई कि उन्होंने चीख चिल्लाहट की हो या तरस की भावना की अर्ज की हो, छोड़ दो। जब उन्हें पूछा जाता था कि अगर छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे, उत्तर ये होता था कि मुगल स्टेट का जुल्म खत्म करेंगे, इसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे। तो श्रोतागणों, छोटे साहबजादों के चरणों में प्रणाम।
इतना बड़ा इसका पंजाबी में रमन ने हमें याद कराया, छोटियां जिंदा वड्डे साके। साका मैंने ट्रेजिडी होता है कि उम्र छोटी थी लेकिन ट्रेजिक काम बहुत बड़े कर गए, जो हमारे स्मरण में से कभी गैर हाजिर नहीं होंगे। बात शुरू करेंगे आनंदपुर साहब का किला छोड़ने के पल से। बहुत देर हो गई थी, मुगल सेनाओं का घेरा बड़ा भी था और लंबा भी, अंदर राशन खत्म हो रहा था। गुरु साहब को किला छोड़ना पड़ा। अंदरली संगत ने भी कहा कि किला छोड़ने में भला है सबका। जब किला छोड़ा तो किला छोड़ने के बाद सतलुज दरिया के नजदीक गए। सिख हिस्ट्री में ये साखी है कि कुछ गागरों में मोहरें थी, चांदी के रुपये थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो गागरें उल्टा दी सतलुज में, सारा धन सतलुज में फेंक दिया। संगत ने पूछा, महाराज संगत का धन जाया क्यों करते हो? महाराज ने फरमाया, संगत का धन जाया थोड़ा करता है कोई, ये तो बहुत कीमती है। सतलुज दरिया के सिर कर्जा चढ़ा रहे हैं, ये मेरे परिवार को आने वाले समय में सेवा करेगा, इसी यह कर्जा उतारता रहेगा, सेवाएं देता रहेगा। सभी दरियाओं से ज्यादा सेवाएं पंजाब आज सतलुज की ले रहा है। माता गुजरी जी एक तरफ खड़े थे, उनके बाजू के नीचे मोहरों की थैली दबाई हुई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया, माता जी आप भी ये धन सतलुज के हवाले कर दो, सतलुज के सिर कर्जा चढ़ा दो। ये कह के चले। माता जी ने साथियों से कहा, भाई बिखरा पेंडा है, मुश्किल का समा है, ये कभी धन कहीं काम आएगा, इसको तो रख लेते। श्रोतागणों, विद्यार्थियों और अध्यापकों, ये बात मेरे मन में अटकी हुई है। वो जो धन था माता जी ने नहीं फेंका था सतलुज में, वो काम तो आया, लेकिन माता जी के और साहबजादों के नहीं, गंगू के, उनके रसोइये के। इसी धन के लालच में उन्होंने पकड़वा दिया। मन में आता है कई दफा कि माता जी अगर बात मान लेते, ये धन सतलुज के हवाले कर देते, तो शायद इतना बड़ा खूंखार ट्रेजिक काम ना होता। लेकिन ये अंदाजे हैं, जो अकाल पुरख, जो वाहिगुरु, जो परमेश्वर ने लिखा है होना तो वही था और वही हुआ। गंगू का गांव था सहेड़ी, ये मुरंडे का नजदीक है। हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बता दें कि रोपड़ जिला, सरहंद जिला, ये जितने भी जिले हैं नजदीक नजदीक, रोपड़, खरड़, बनूड़, इन इलाकों के लोग सहेड़ी गांव का नाम नहीं लेते। कहते हैं ये बुरा नाम है, इसका नाम सहेड़ी, ये मत लो, ये नाम मत लो। उच्चा पिंड इसका नाम रख दिया है। उच्चा पिंड, ग्रेट विलेज, इसलिए क्योंकि माता जी के चरणों की छो प्राप्त है ये गांव, और छोटे साहबजादे यहाँ रुके थे एक रात। बाद में मुरिंडा के कोतवाल ने गिरफ्तारी की थी, मुखबरी की थी गंगू ने। कुछ आदतन कुछ सिख प्रचारक या कुछ कथाकार बार बार ये कहते हैं कि ये गंगू ब्राह्मण की करतूत थी, गंगू ब्राह्मण की करतूत थी। ये जात पात से मुक्त किया था गुरु महाराज जी ने। मैं अपने श्रोताओं को आज एक और शख्सियत का जिक्र करना चाहता हूं, उनका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। वो भी ब्राह्मण थे। कैसे कैसे लोग इस संसार में आए और अपने अपने कर्मों से अमर हो गए। उनमें से भाई कृपाराम जी एक हैं। आप सभी लोगों ने ये तो इंसिडेंट सुना और पढ़ा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आनंदपुर कश्मीर के दुखी उदास ब्राह्मण आए थे कि हमारे पर स्टेट ज्यादती कर रही है, जुल्म ढा रही है, आप हमें बचाएं। तो गुरु तेग बहादुर साहब उनकी हालत देखकर दयनीय थे, उदास थे। लोगों पर, प्रजा पर ये जुल्म नहीं चाहिए जो हो रहा है। 9 साल की उम्र थी गुरु गोबिंद सिंह जी की। खेलते खेलते उधरा निकले, पिता को और मेहमानों को उदास देखा, दुखी देखा। कारण पूछा, पिताजी ने बताया कि ये दुखी ब्राह्मण है, इनका धर्म जबरन तब्दील किया जा रहा है। तो पिताजी फिर आप इलाज करो इसका।
आपके पास ताकत है, समर्थ हो आप, कैसे हो सकता है इनका इलाज? श्री गुरु जी ने फरमाया, कोई महापुरुष अपना बलिदान दे, शहादत दे, तो बच्चे फिर दूर हो सकता है इनका कष्ट। 9 साल की उम्र के गुरु गोविंद सिंह जी तब गोविंद राय थे। उन्होंने फरमाया, तो आपसे बड़ा महापुरुष कौन होगा? सभी बेचैनी खत्म, सभी उदासी खत्म। छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ी बात कह दी, तो ये सही रास्ता है, दिल्ली के लिए चल पड़े। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी और भाई कृपाराम जी, तकरीबन 2 दर्जन सिखों की ये टुकड़ी थी। भाई कृपाराम जी उस समय श्रोमणी विद्वान थे, अरबी के, फारसी के, संस्कृत के, ब्रज भाषा के। अभी आनंदपुर की पहाड़ियां पार नहीं की थी, गुरु तेग बहादुर साहब रुके और भाई कृपाराम जी को रोक कर कहने लगे, भाई जी आपको एक जिम्मेवारी देनी है, माननी पड़ेगी। हाथ बांधकर भाई कृपाराम जी खड़े हो गए, जो हुक्म करोगे हुजूर, मानेंगे। गुरु जी ने फरमाया, आप हमारे साथ दिल्ली नहीं जाओगे, आप आनंदपुर रहोगे। गोविंद राय बच्चे हैं अभी, उनकी तालीम है, उनकी विद्या है, वो आपकी जिम्मेवारी, उनकी परिवर्ष आपकी जिम्मेवारी। आपको ये हुक्म है कि आप वापस श्रीनगर कश्मीर में नहीं जाओगे, आप आनंदपुर ही रहोगे और यहाँ रहते हुए अपनी ये जिम्मेवारियां निभाओगे। भाई कृपाराम जी आनंदपुर ही रहे और गोविंद राय की सारी विद्या, हम अब तो जानते हैं जफरनामा फारसी में, भाई फारसी बोलनी, लिखनी, समझनी अलग बात है, उसमें शानदार नज्म रचनी, वो नज्म जिसने औरंगजेब के हृदय को छुआ, वो नज्म जफरनामा है। तो अरबी सीखी, फारसी सीखी, संस्कृत सीखी, ब्रज भाषा। अगर गुरु जी का ब्रज भाषा का कमाल देखना हो तो श्री दसम ग्रंथ का पाठ करें। कहने का मतलब ये कि भाई कृपाराम ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां निभाई और यहां तक सीमित नहीं थी जिम्मेवारियां उनकी। जब 1699 में श्री गुरु खालसा पंथ प्रकट हुआ, बैसाखी को हजारों लोगों ने अमृत छका, खालसा पंथ में शामिल हुए। भाई कृपाराम जी गुरु जी के पास आए और कहा, जी मुझे भी इजाजत मिलेगी अमृत छकने की, अमृत पान करने की। गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया, आप तो हमारे अध्यापक हैं, आपको हम क्या दे सकते हैं? कृपाराम जी ने कहा, मुझे हुक्म दिया था बड़े पिता गुरु तेग बहादुर साहब ने कि जितनी विद्या आपके पास है वो गोविंद राय को देनी है। मैंने जो विद्या मेरे पास थी वो आपके चरणों में सौंप दी। ये दुनियादारी की विद्या थी, आप परमार्थक विद्या दे रहे हैं। जो विद्या मेरे पास थी वो मैंने आपको सौंप दी। अब जो आपके पास रूहानी विद्या है मैं उसका अधिकारी हूँ, आप आशीष दें, परमार्थ की विद्या दें और मुझे अमृत छकने की आज्ञा दें। श्री गुरु जी ने आशीष दिया और भाई कृपाराम जी ने अमृत पान किया और कृपा सिंह होकर इतिहास में गुजरे। जब बड़े साहबजादे युद्ध लड़ रहे थे मोगल सेनाओं के खिलाफ, तो बड़े साहबजादों की हिफाजत के लिए भाई कृपा सिंह तेग चलाते हुए घोड़े पर सवार वहां लड़े और शहीद हुए। जहां शहीदी स्थान बना हुआ है बाबा अजीत सिंह जोरावर सिंह जी का, वहीं लिस्ट लगी हुई है गुरुद्वारा की दीवार पर, जिन जिन ने उनमें भाई कृपा सिंह जी भी हैं। तो मैंने जानबूझकर आज के पवित्र दिन ये साखी आपको सुनाई कि गंगू ऐतिहासिक पात्र है जिसने घृणित काम किया, लेकिन उसकी वजह से हम बाकी जो विद्वान थे और हैं, और गुरबाणी में भी भक्तों में ब्राह्मण हैं, तो उस सूरत में जात की वजह से ना हम गंगू को गाली देंगे, जात की वजह से ना हम किसी को श्रोमणी मानेंगे। ये गुरमत का हमें संदेश है। तो एक तो बात आपसे ये करनी थी। दूसरी बात ये कि मुरिंडा से कोतवाल आया, गिरफ्तारी हुई, माताजी को और साहबजादों को इन दिनों ठंडे बुर्ज में रखा। हमें रजाइयों में बैठे हुए, हीटर ऑन किए हुए सर्दी महसूस होती है, तो उनके पास गर्म लिबास नहीं थे, गर्म कंबल नहीं थे, और रखा भी उस जगह पर जहां गर्मियों के दिनों में भी ठंड लगती है, तेज हवा चलती है। हम अक्सर ये सुनते हैं, मैंने सुना है
और अब तो भगवत गीता का पंजाबी अनुवाद भी हो गया है केंद्रीय यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो साखी में हमने सुना कि अर्जुन युद्ध के वक्त डोल गए थे, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कृष्ण जी महाराज वहां मौजूद थे। गीता का प्रकाश हुआ, गीता का उपदेश हुआ और अर्जुन ने फिर अपने हथियार उठाए और जिम्मेवारी संभाली। सिख प्रचारक इस तरह का कुछ जिक्र करते हैं कि जो जिम्मेवारी महाभारत में कृष्ण जी महाराज ने निभाई थी अर्जुन को रास्ते पर लाने के लिए, वो जिम्मेवारी इस धर्म युद्ध में माता गुजरी जी ने निभाई। ये पढ़ते हुए ये बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन मन में आता है कि अर्जुन जी डोल गए थे। छोटे साहबजादे कहीं डोल गए हों, घबराए हों, चिंतातुर हुए हों, ऐसा तो कोई हवाला मिलता नहीं है। ये किस तरह की मिट्टी के बने हुए थे, किस तरह के मानसिक विकास इनको मिला, वो संसार में आश्चर्यनीय है। मन में श्रोतागणों, मन में कभी कभी बात आती है कि गुरु नानक देव जी इस बात पर कभी कभी परेशान होते थे कि पिताजी उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे। हम जानते हैं पिताजी डांट फटकार करते थे, एक दफा तो चपेट भी लगाई थी। जो गुरु नानक देव जी कर रहे थे वो पिता को समझ नहीं आ रहा था। उसी तरह श्री गुरु जी के दो बेटे थे, बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मीदास जी, वो अपने पिता की बात समझ नहीं पा रहे थे। गुरु जी चाहते थे कि जिस तरह भाई लहणा जी बात समझ रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे उस तरह बात समझ नहीं पा रहे। लेकिन जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी, उसी तरह के गुरु गोबिंद सिंह जी, उसी तरह के माता गुजरी जी, उसी तरह के चारों साहबजादे। तो हम टेक्निकल लैंग्वेज में आजकल जनरेशन गैप कहते हैं। गुरु नानक देव जी के पिता में और उनके बेटों में जनरेशन गैप था। 10वें पातशाह तक पहुंचते पहुंचते गुरु नानक देव जी ने अपने उत्तराधिकारियों में से ये जनरेशन गैप खत्म कर दिया। मैं रिसर्च स्कॉलर था पंजाबी यूनिवर्सिटी में। 1977 में हमारे मुखी डॉक्टर वजीर सिंह ने गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्वान डॉक्टर R.K. त्रिपाठी को इनवाइट किया। गुरु नानक देव जी के पूर्व पर आप हमें उपदेश दें, पेपर पढ़ें, बातें बताएं, आपसे सुनना चाहते हैं, आप विद्वान हैं। पहुंचे, उनके दर्शन, मेरी ड्यूटी लगी थी रेलवे स्टेशन से डॉक्टर त्रिपाठी जी को रिसीव करने की। दर्शन हुए, चरण छुए, धोती पहनी हुई थी, माथे पर तिलक था। और संस्कृत के इतने भारी विद्वान कि आज भी प्रणाम करने को मन करता है। उन्होंने जो पेपर पढ़ा, माननीय अध्यापक साहबान और विद्यार्थियों, उसका पहला सेंटेंस मुझे कभी नहीं भूलेगा। आपको सुनाता हूं। लिखते हैं, It is wrong to say that there were 10 Sikh gurus. It is wrong to say that there were 10 Sikh gurus. In fact, Guru Nanak gave us 10 opportunities so that we may be able to understand him. गुरु साहबान की गिनती 10 मत करो, सिर्फ गुरु नानक देव जी थे एक। उन्होंने हमें 10 मौके प्रदान। पहली दफा उनकी बात ठीक समझ नहीं आई थी, दूसरी दफा समझ आई। 5वें पीरियड में तख्ती तबी पर बैठकर उन्होंने उपदेश दिया, हमें कुछ और बातें सिखाई कि कष्ट इस तरह बर्दाश्त करने हैं। 9वें पीरियड में वो चांदनी चौक में शहादत के लिए पहुंचे और 10वें पीरियड में उन्होंने खालसा प्राप्त किया। तो ये बड़ों से बातें सुनने को मिली और अपने विद्यार्थियों को बताने का मौका मिला। एक बात आप और बता दूं कि जब ट्रायल चल रहा उस वक्त दीवान सुच्चानंद मौजूद था, वजीर खान मौजूद था, काजी मौजूद था। काजी शब्द है जो इसको कई पंजाबी मौलवी के रूप में लेते हैं कि काजी मैंने पुजारी, मस्जिद का पुजारी, ऐसा नहीं है। काजी जज है, जजमेंट डिलीवर करता है। फतवा मैंने जजमेंट। वहां शेर मोहम्मद खान पहुंचा क्योंकि इनवाइट किया हुआ था। वजीर खान ने शेर मोहम्मद खान मलेरकोटले का हाकिम था।
वजीर खान ने शेर मोहम्मद खान को कहा कि युद्ध में तुम्हारे पिता का कत्ल इनके पिता ने किया था, अब मौका आया है, आप इनका बदला ले, आप अपने पिता के कत्ल का बदला लो, इन साहबजादों को कत्ल करो। शेर मोहम्मद खान ने कहा ये शरा में इजाजत नहीं इसकी हुजूर, इसमें शक नहीं कि मेरे पिता का, मेरे अब्बू का कत्ल किया था इनके पिता ने, लेकिन युद्ध होगा, मैं इनके पिता को ललकारूंगा और युद्ध में करूंगा जो कर सका। ये गिरफ्तार बच्चों को थोड़ा सजा दूंगा मैं उसके बदले में, ये शरा नहीं है, इस्लाम में ऐसा वर्जित है। दीवान सुच्चानंद ने पूछा कि इन काफरों से आपको प्रेम कैसे हो गया? शेर मोहम्मद खान ने कहा किसी काफिर से कोई प्रेम नहीं, इस्लाम से प्रेम है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, मुझे खतरा दिखाई दे रहा है, इतने मासूम बच्चों को इतनी बड़ी सजा दी जाए, इसके रिजल्ट भयानक निकलेंगे। हिस्ट्री में ये रिकॉर्डेड है कि जब देख लिया कि वजीर खान बजिद है, उसने औरंगजेब को खत लिखा। वो खत की कापी मलेरकोटला के खानदान के पास मौजूद है और उसकी पंजाबी में, हिंदी में नकलें भी प्राप्त होती हैं। मैंने उसकी नकल पंजाबी में प्रकाशित की थी 2 दहाके पहले। उसमें औरंगजेब को भी यही कहा गया है कि मैंने आपके सामने एक अर्ज करनी है, उसको गुस्ताखी मत समझा जाए। आप जिस तरह मजबूत हाकिम हैं, मैं उसी तरह आपका कारिंदा हूं, मैं आपका एक वर्कर हूं। तो मेरे ख्याल में इन मासूम बच्चों को इनके पिता की हरकतों की वजह सदका इतनी भयानक सजा दी जाए, ये प्रजा पसंद नहीं करेगी, ये अल्लाह को मंजूर नहीं होगा। मुझे ये मत समझा जाए कि मैं आपकी सुर के खिलाफ कोई बात करके बगावत कर रहा हूं। मैंने आपके कदमों में सिर्फ ये राय रखनी थी, आप मालिक हैं, आप जो करना चाहें करें। ये लेटर पहुंचा औरंगजेब के पास के नहीं पहुंचा, इसका असर तो कुछ हुआ नहीं। और औरंगजेब दक्षिण में था उन दिनों, पहुंचा नहीं होगा, संभावना इस बात की है। लेकिन हुआ क्या कि सिखों के मन में ये बात आ गई कि दुनिया में एक मुगल हाकिम इस तरह का है जो इंसाफ पसंद है। और गुरु गोबिंद सिंह जी को इस बात की खबर मिली, उन्होंने कहा मलेरकोटले की जड़ हरी, ये असीस मिली। जब श्री गुरु जी को ये खबर मिली, बड़े साहबजादे तो उनके सामने शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते, छोटे साहबजादों की खबर मिली, गुरु जी के हाथ में तीर था, जमीन पर बैठे थे, उस तीर की तेज नोक से घास की एक जड़ निकाली और कहा मुगल की जड़ गई। दूसरा वाक था श्री गुरु महाराज जी का, बहुत ताकतवर बाज था मुगल, जो एशिया के आसमान में सदियों तक उड़ता रहा। इस बाज ने अपने पंख खुद कुतर लिए, अब हवा का एक झोंका आएगा, ये खुद धरती पर गिरेगा। जब इतना बड़ा संसार में पाप हो तो हुकूमतें कायम नहीं रह सकती, ये गुरु जी का कहने का मनोरथ था, और हुआ भी यही बाद में। औरंगजेब के बाद तो, औरंगजेब के होते हुए बगावतें शुरू हो गई थी, उसके बाद तो फिर आ गए बाबा बंदा सिंह। माननीय विद्यार्थियों और अध्यापक गण, साहबजादों की साखी और साहबजादों का इतिहास अधूरा रहेगा अगर बाबा बंदा सिंह की बात ना छेड़ी जाए, बात ना सुनाई जाए। बाबा बंदा सिंह, जब गुरु गोबिंद सिंह जी तलवंडी साहबों की, दमदमा साहब जिसे हम कहते हैं, अपना काम समाप्त कर लिया, औरंगजेब को जफरनामा मिल गया था, और औरंगजेब ने जफरनामा पढ़ के मैसेज भेजा था कि मैं बूढ़ा हूं, उम्र ज्यादा हो गई है, बीमार हूं, चल नहीं सकता, मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गुनाह की है, अगर आप दीदार हो जाएं, आपसे क्षमा मांगूं, आप बख्शिश कर दें, शायद मेरा जो सजाएं मुझे मिलनी है कम हो जाए। ये उस औरंगजेब ने औरों को भी इस तरह के लेटर लिखे अखीरली उम्र में, उसको पछतावा होने लगा था। दमदमा साहब गुरु जी को ये मैसेज मिला तो दमदमा साहब की संगत से छुट्टी ली और कहा कि हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, औरंगजेब से मिलेंगे। यात्रा शुरू हुई। जयपुर में भाई जेतराम के यहाँ कयाम किया। भाई जेतराम जी ने बताया कि महाराज औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, अब तो दक्षिण में जाने का कोई फायदा नहीं।
वो जिसके साथ बात करनी वो तो रहा नहीं। गुरुजी ने कहा नहीं, अब खानदान में सत्ता के लिए युद्ध होगा और इनमें से सबसे बड़ा बहादुर शाह है और वो विद्यार्थी है भाई नंदलाल जी का, और वो गुरु घर को, गुरु नानक देव जी के पंथ को प्रेम करता है, नफरत नहीं करता, इस बात का हमें पता है। वो बड़ा है, उसका हक बनता है और हमसे उसका प्रेम है, हम उसकी मदद करेंगे, उसके साथ बेइंसाफी ना हो जाए। देखिए विद्यार्थी नौजवानों के, जिस खानदान ने श्री गुरु जी का सारा खानदान खत्म किया, उसकी मदद करने के लिए, उससे बात करने के लिए गुरु जी दक्षिण की तरफ चल पड़े। जाते जाते उन्होंने भाई जयतराम जी से पूछा कि भाई रास्ते में या उधर दक्षिण में कोई विद्वान बताओ, कोई बंदगी करने वाला, सिमरन करने वाला साधु हो बताओ, उनके चरणों में बैठेंगे, कुछ सीखेंगे। यही भाषा गुरु नानक हुआ करती थी। जन्म साखियों से हमें ज्ञात होता है कि कुल एशिया में भ्रमण किया गुरु नानक देव जी ने। एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाने से पहले स्थानिक लोगों से पूछा करते थे, भाई इधर जा रहे हैं, कोई विद्वान बताएं, कोई गुणी जन बताएं, जिनसे कुछ सीखेंगे। गुरु साहिबान ने कभी नहीं कहा कि हम बड़े हैं, हम सिखाने आए हैं, हम विद्वान हैं, हमारी विद्या आपके काम आएगी। वो कहते हैं हम सीखने आए हैं, हमें कुछ सिखा दो। तो भाई जयतराम जी ने कुछ लोगों के नाम बताए। ये बताने के बाद कहने लगे, उधर एक बहुत बड़ा विद्वान तो है, लेकिन उसे अपनी विद्वता पर गर्व है, नाम है माधोदास, उसको मत मिले, वो आए गए मेहमान की कई दफा बेअदबी कर देता है। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, लेकिन लगता है मन में ये फैसला कर लिया कि किसी और को मिले ना मिले, माधोदास नाम के विद्वान को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दक्षिण में गए, वहां भाई माधोदास जी का ठिकाना ढूंढा। भाई माधोदास अपने मठ में नहीं थे, जंगल की तरफ गए हुए थे। उनके सिंहासन पर विराजमान हो गए गुरु गोविंद सिंह जी। माधोदास वापस आया, देखा हमारे सिंहासन पर कोई अजनबी बैठा है, क्रोधवान हो गए। पहला सवाल जो हुआ, ये सवाल और जवाब हमारे प्राचीन सनातनी सिख ग्रंथों में मिलते हैं। पहला सवाल था, आप कौन हो? गुरुजी ने कहा, वही जिसे आप जानते हो और जिसे आप तलाश कर रहे हैं। सोच सोच के कहने लगे, कहीं आप गुरु गोविंद सिंह जी तो नहीं हो? गुरुजी ने कहा, हाँ सही पहचाना, हम वही हैं। अब आप बताओ आप कौन हो? माधोदास ने कहा, जी अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी हैं तो मैं आपका बंदा। बंदा मैंने गुलाम, बंदीवान, बंदी जो बंदी हो, कैद में हो, हिरासत में हो, जकड़ में हो, गुलाम। जी अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी हो तो मैं आपका बंदा। गुरु महाराज ने कहा कि कहने से नहीं, कर्मों से बंदा बनना होगा। जी जो हुक्म करोगे सो मानूंगा। उनके पास कुछ देर रहे, कुछ दिन रहे और बताया कि पंजाब में और हिंदुस्तान में किस किस तरह क्या क्या जुल्म हो रहा है लोगों पर। बाबा बंदा सिंह का नाम गुरु गोविंद सिंह जी से मिला जब कहा कि मैं आपका बंदा। श्री गुरु जी के आशीष से अमृत छका और पक्का नाम बंदा सिंह हो गया। गुरु जी ने कहा कि इस जुल्म का खात्मा आपकी जिम्मेवारी, आप कर सकते हो। विद्यार्थियों और अध्यापकों, बाबा जी को 5 सिख दिए गुरु जी ने, कहा ये आपका साथ देंगे। 15 और सिख उठे और उन्होंने गुरु जी से कहा, जी आज्ञा हो तो हम भी बाबा बंदा सिंह जी के साथ ये सेवाएं, सैनिक सेवाएं निभाएं। गुरु जी ने आशीष दी। तो टोटल 5 सिख गुरु जी के दिए हुए, छठे बाबा बंदा सिंह, 15 और, तो 21 सिख थे। बाबा बंदा सिंह जी ने हाथ गुरु जी से कहा, गुरु महाराज एशिया की सबसे बड़ी ताकत है जिसके साथ टक्कर लेने के लिए आपने हमें हुक्म दिया। आपका हुक्म है इसलिए ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके पास तोपखाना है, हमारे पास बंदूकें भी नहीं। उनके पास हाथी हैं, हमारे पास घोड़े भी कम हैं। उनके पास हजारों की गिनती में फौजें हैं, हमारे पास 21 योद्धे हैं। चलो ठीक है फिर टकराएंगे, लेकिन कुछ करामात तो दे दो हमें। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, भाई बंदा सिंह
गुरु नानक देव जी के दरबार में बेअंत शक्तियां और करामातें मौजूद हैं। ये सभी हमने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को और श्री गुरु खालसा पंथ जी को दे दी हैं। जब आपको किसी शक्ति की जरूरत हो तो गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने खड़े होकर अरदास करनी और गुरु पंथ के सामने खड़े होकर झोली फैलानी। आपकी झोली में जितना आप मांगोगे उससे कहीं ज्यादा पड़ेगा, कहीं ज्यादा मिलेगा, इस बात पर शक नहीं करना। गुरु जी के चरण छुए 21 लोगों ने वहां से कूच किया नांदेड़ से और पंजाब की तरफ बढ़ते गए। रास्ते में बाबा बंदा सिंह जी ने पंजाब के योद्धाओं को, सिख श्रद्धालुओं को खत लिखे। उन खतों को हुक्मनामे कहा जाता है। हुक्मनामे क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु जी ने पंथ का पहला बादशाह बाबा बंदा सिंह को थाप दिया था। उन हुक्मनामों में क्या लिखा है वो मिलते हैं। लिखा है, भाइयों मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी सेना में भर्ती हो। आपको देने के लिए मेरे पास तनख्वाह नहीं है, आपको देने के लिए मेरे पास हथियार नहीं है, आपको देने के लिए मेरे पास वर्दियां नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है और आपसे मैं मांग रहा हूं आपकी जान, आपके शीश। आप सोचोगे तो कि हमें मिल तो कुछ रहा नहीं और मांग रहे हैं बाबा बंदा सिंह जान, तो ये तर्क संगत कैसी हुई बात? तर्क संगत इसलिए हुई भाइयों कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का हुक्म है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में धरती पर से जुल्म खत्म करेंगे, इसलिए आपकी जरूरत है। विद्यार्थियों, जिसके पास गाय भैंस बल्द थी उसने बेच के घोड़ा खरीदा, जिसके पास हथियार नहीं था हथियार खरीदा, जिसके पास अच्छा हथियार नहीं था उसके पास नेजा था, कृपान थी, जिसके पास ये भी नहीं थे उसने कुल्हाड़ी उठा ली, गंडासा उठा लिया। जिसके पास जो था वो उठा के बाबा बंदा सिंह की सेना में भर्ती होने लगा। पानीपत पर हमला किया, हराया। सोनीपत हमला किया, हराया। जींद पर हमला किया, हराया। कैथल पर हमला किया, हराया। समाना पर हमला किया, हराया। जब समाना पर हमला किया तो उस वक्त तक भाई आली सिंह भी बाबा बंदा सिंह की फौज में शामिल हो चुके थे। भाई आली सिंह कौन थे ये भी बताना आपको जरूरी है। भाई आली सिंह सरहंद वजीर खान की कोर्ट में अर्जी नवीस थे। वजीर खान के महल से लेकर जो रास्ता उनकी कोर्ट तक जाता था उस सड़क के दोनों तरफ अर्जी नवीस बैठा करते थे जमीन पर और लोगों की अर्जियां लिखते। भाई आली सिंह की पर्शियन की लिखाई बहुत बढ़िया थी। वजीर खान आ रहा था, दोनों तरफ के अर्जी नवीस उठकर सलाम करते थे। भाई आली सिंह भी उठे, उन्होंने भी सलाम किया। वजीर खान आली सिंह के नजदीक आकर रुका और कहा, आली सिंह हमने सुना है कि एक योद्धा पैदा हुआ है पंजाब में, बंदा सिंह उसका नाम सुना है। वो अपने आप को बहुत बड़ा सूरबीर समझता है। तेरी लिखाई बहुत बढ़िया है, उसको खत लिख कि यहां भी चक्कर लगाए सरहंद में, हम बता देंगे कि हमने साहबजादों के साथ क्या किया था। आली सिंह ने कहा, जी मैं तो जानता नहीं उसको। अगर आपको पता है कि वो योद्धा है, बहादुर है, फिर उसको खत लिखने का क्या काम? अगर योद्धा हुआ तो खुद बिना खत लिखे ही आ जाएगा यहाँ। ये बात वजीर खान को बुरी लगी, गुस्ताखी लगी। उसने आली सिंह को 1 महीने की कैद की सजा दी कि इसको अदब नहीं आता, ये बड़ों के साथ इस तरह बात करता है। कैद में से छुटकारा होने के बाद वो फिर कोर्ट में नहीं गए, कचहरी में अर्जी लिखने नहीं गए, फिर वो कैथल बाबा बंदा सिंह की फौज में शामिल हो गए थे और समाना में हमला करते हुए उनके साथ। जब सरहंद पर हमला हुआ उस वक्त भाई आली सिंह बाबा बंदा सिंह के साथ थे। इधर बनूड़ सेनाएं इकट्ठी हुई, उधर मझैल से खा रहे थे अमृतसर, गुरदासपुर, लाहौर की तरफ से, वो भी बड़ा ताकतवर जथा था। वजीर खान ने शेर मोहम्मद खान की जिम्मेवारी लगाई कि इनको सतलुज दरिया मत पार करने दो। सतलुज दरिया मैदान में तो बहुत चौड़ा था, पार करना मुश्किल था, लेकिन पहाड़ियों की तरफ, कीरतपुर साहब की तरफ इसका रास्ता तंग था, वहां से दरिया पार किया जा सकता था। मझैल सिखों की सेनाएं वो पार करने लगी और इधर किनारे पर पूर्व की तरफ आने लगी। शेर मोहम्मद खान अपनी सेना के साथ मौजूद था और बहुत खूंखार जंग हुई पहले दिन।
किसी तरफ को फतेह नहीं मिली। अगले दिन युद्ध होने लगा। शेर मोहम्मद खान का भाई और 2 भतीजे कत्ल हो गए सिखों के युद्ध में। ऑलमोस्ट मलेरकोटले की सेनाएं हार चुकी थी, लेकिन वो जा नहीं रहा था। शेर मोहम्मद खान बार बार हमले कर रहा था। सिखों ने देखा, सोचना शुरू किया, ये हमले किस लिए कर रहा है, अब इसके पास ताकत तो है नहीं। तो पता चला कि ये अपने भाई की और अपने भतीजों की लाशें ले जाना चाहता है। सिख पीछे हट गए। उसकी युद्ध के दूसरे दिन प्राप्ति ये थी कि वो अपने साथ 3 लाशें ले जा सका। उसके बाद ये जो काफिला था सिखों का, मझैल सिखों का, बनूड़ आया। बनूड़ में मलवई सिख थे, बांगरू सिख थे, गैर पंजाबी दिल्ली की तरफ के सिख थे। जहां जहां भी देखो विद्यार्थी और अध्यापक गणों, बाबा बंदा सिंह का पंजाब से कोई राबता नहीं था। बाबा बंदा सिंह तो जम्मू के थे, जम्मू बंदगी करते थे, फिर जम्मू बंदगी करते करते वो दक्षिण की तरफ चले गए। पंजाब के सिखों के नाम और सिरनामे और ठिकाने ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखाए थे बाबा जी को। गुरु गोबिंद सिंह जी का जिक्र हुआ तो कौन सिख अपने घर में रहता था। छोटे बड़े साहबजादों की शहादतों की सट थी जो वो दिल पर खुनी हुई थी, दिल पर बैठी हुई थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब उनको नायक मिल गया, हीरो मिल गया। तो बाबा बंदा सिंह की सेना मजबूत होती गई। लेकिन फिर भी जब चापड़चिड़ी के मैदान में मुकाबला हुआ, सभी सोर्स ये बताते हैं कि वजीर खान की फौज 50,000 थी और बाबा बंदा सिंह की सेना 20,000 से बिल्कुल ज्यादा नहीं थी। इस युद्ध को कवर करने के लिए दिल्ली से इंटेलिजेंस ऑफिसर मीर नाम का एक आया हुआ था सरकारी मुलाजिम। उसने इस दिन की घटनाएं लिखी हुई हैं। वो लिखता है कि वजीर खान हाथी पर सवार था। बाबा फतेह सिंह ने जब देखा वजीर खान को आगे बढ़ते हुए, उसने अपना घोड़ा सरपट दौड़ाया और वजीर खान के नजदीक आ गए। वजीर खान के हाथी के नजदीक खाली घोड़ा था। क्योंकि हाथी लड़ने के लिए ठीक सवारी नहीं होती, वो डायरेक्शन देने के लिए होता है कि ऊंचा है ना, कि इस तरफ हमारी सेनाएं मजबूत हैं, इस तरफ कमजोर हैं, कमजोर सेनाओं की मदद की जाए। तो उस सूरत में वो दृश्य देखने के लिए हाथी पर सवार होते हैं राजा लोग भी और शूरवीर जर्नैल भी। बाबा बंदा सिंह एक ऊंचे टिल्ले पर चढ़े हुए थे। वो वहां से देख रहे थे और तीरों की बारिश कर रहे थे। वजीर खान ने छलांग लगाई और घोड़े पर सवार हो गए। बाबा फतेह सिंह का और वजीर खान का घोड़ा आमनो सामने हुआ। रकाबों पर खड़े होकर बाबा फतेह सिंह ने दोनों हाथों से कृपान का वार ऐसा जबरदस्त किया कि वजीर खान के दाएं कंधे से गुजरती हुई कृपान बाएं वक्षस्थल में से गुजर गई। 2 टुकड़े हो गए वजीर खान के, एक टुकड़ा घोड़े के एक तरफ, एक टुकड़ा दूसरी तरफ गिरा। जब वजीर खान के 2 टुकड़े हो गए तो सेना ने कहां रुकना था, फिर भगदड़ मच गई। अपने हथियार, अपने घोड़े, अपने हाथी वहीं छोड़कर सारी सेना भाग गई। ये इंटेलिजेंस ऑफिसर मीर लिखता है, सुबह जो पैदल आए थे हमारे खिलाफ, हमारे दुश्मन लड़ने के लिए, जिस सेना में 5,000 योद्धे ऐसे हों जिन्हें अपनी जान की परवाह ना हो, उस सेना को हराना बहुत मुश्किल है। हमारे सामने जो 20,000 मौजूद थे, वो 20 के 20,000 ऐसे थे जिनको जान की परवाह नहीं थी। फिर इनको हराने वाला कौन था? यहाँ ये घटना 12 मई 1710 की है। तीसरे दिन 14 मई 1710 को सरहंद के किले पर निशान साहब लहरा दिया गया। सिख सेनाओं ने खजाना धन लूटना शुरू कर दिया। बाबा बंदा सिंह ने भाई आली सिंह को बुलाया और कहा, भाई आली सिंह, जिनका ये खजाना था उन्हीं के पास जा रहा है। अब इन्हीं से छीना हुआ था, जुल्म के साथ, जबरदस्ती के साथ। इन लोगों को ये खजाने का हक है, ये अपने साथ ले जाने के हकदार है। लेकिन हमारा एक खजाना और भी है यहाँ, आपको पता है, हमें उस खजाने के दर्शन करवाओ। विद्यार्थियों, वो खजाना था वो ईंटें जिन्होंने साहबजादे के मासूम अंगों को छुआ था। भाई आली सिंह
ईंटों के उस ढेर के नजदीक ले गए। बाबा बंदा सिंह ने अपने जोड़े उतारे, एक एक ईंट को उठाया, मत्थे पर लगाया और आंसुओं की मोहर लगाई। साथियों से कहा, हीरे मोती जवाहर सोना चांदी बड़ा है दुनिया के पास, बहुत आएगा। हमारे पास ये जो धन है ये किसी के पास नहीं है। हे गुरु दसम पातशाह हुजूर, आपने कितना माला माल कर दिया हमको इस धन से। इस धन की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अभी इतने स्रोत नहीं है कि हम ऊंची इमारत, शानदार इमारत उसार सकें, इतना भी वक्त भी नहीं है। लेकिन ये धन कहीं रुल ना जाए, इसकी हम राखी करेंगे। ढूंगा गहरा गड्ढा खोदा गया, उसमें ये ईंटें सजाई गई। जी सर, पन्नू सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए नहीं। Dr. Can you, hello? Hello? Dr. Raman, can you hear me please? I am audible. आप मुझे सुन सकती हैं क्या? जी जी सर, जी सर। सर वो डिस्कनेक्ट हो गए नेटवर्क की वजह से, तो वो कह रहे हैं कि अभी शायद नहीं जुड़ पाएंगे। हेलो, हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी सर, मैं हेलो, एक बार चेक कर। हेलो, जी सर, हेलो, आपकी आवाज। सर आपकी आवाज आ रही है। वीरबाल वीरबाल दिवस के अवसर पर आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर पन्नू साहब, डॉक्टर रमनदीप जी, डॉक्टर रमनदीप और इस वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी मैं बठिंडा के बाहर हूँ और अभी एक बैठक में था, बाहर निकल करके आया हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि डॉक्टर रमनदीप, डॉक्टर अमन ने मिलकर के इस जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में आके मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक सप्ताह का ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कराने का निर्णय लिया। ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान हमारे दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के उनका जो बलिदान है, त्याग है देश के लिए, देश की संस्कृति को बचाने के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए, और प्राणों का निछावर भी विदेशी ताकतों के सामने की कभी इच्छा नहीं पैदा हुई और वो अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर, देश के प्रति कुर्बानी देने की जो मनोभावना उसको उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, प्रेरणा उनको मिली। तो ये जो विषय है ये हमारे पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कि जन जन के पास ये विषय जानना चाहिए, क्योंकि जानना चाहिए जिससे कि आज की युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके और हमारे इस समय जो हम संस्कृति और भाईचारा और पारस्परिक प्रेम की जो समस्या हमारे देश में, तो विश्व में जो उठ रही है, इस समस्या से समाधान पाने के
इनका बलिदान हमारे दशरथ के साहबजादों का बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हम सब की अदा कर सकता है। और इसके साथ साथ ये माँ का देखें कि माँ स्वयं की माता जी ने भी कभी किसी भी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं की और अपने पुत्रों को, अपने साहबजादों को उन्होंने प्रोत्साहित ही किया कि वो देश के प्रति, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के साथ किसी तरह का समझौता ना करें। और मुगल शासकों का जो दुर्व्यवहार साहबजादों के साथ था उसको वो सहे, लेकिन कितनी प्रताड़ना उनको मिले वो सहे, लेकिन कभी भी अपने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को समर्पित न करें। और पूरे मानवता के सामने एक समस्या है धर्म परिवर्तन की। छोटे मोटे वजहों से जो धर्म परिवर्तन का कार्य पंजाब में चल रहा है उसको भी रोकने में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है कि जब हमारे साहबजादे इतनी छोटी उम्र में, इतने कम आयु में भी जब वो अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति उन्होंने दे दिया, कितना कष्ट और प्रताड़ना उन्होंने सहा। अभी उस कष्ट और प्रताड़ना का नाम लेते ही हम लोगों को एक वो लगने लगता है कि कैसे छोटे छोटे साहबजादे प्रताड़ना की जो उच्च कोटि है उसको कैसे उन्होंने सहा और इसके बावजूद भी वो अडिग रहे। तो एक जो कंटेम्प्रेरी समय में जो समस्याएं हैं उनसे भी उनके बारे में भी हमें समाधान स्वतः इनके बलिदानों को याद करके हमें ऐसी सभी समस्याओं का समाधान स्वतः हमें मिल सकता है। और ये मैं तो ये भी कहूँगा, और जहाँ भी मैं जिस फोरम में, जिस प्लेटफॉर्म में इस बात को उठा सका हूँ कि इन हमारे साहबजादों के, दसम गुरु जी के साहबजादों के योगदान को हमें स्कूली शिक्षा में पाठ्य पुस्तक का ये अंग बनना चाहिए। एक इसमें अध्याय जरूर हो, एक लेसन हो ये, जिससे कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है इनके बलिदानों से सुप्रीत हो और उनमें एक जिस तरह के चरित्र, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना निरंतर हमारी युवाओं में, आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं सभी पीढ़ी के युवाओं में, बालकों में इस तरह की भावना, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा करने की भावना उत्पन्न हो, इसमें इनका इस त्याग बच्चे बच्चे तक पहुँचना अति आवश्यक है। और इसके साथ साथ इसको हमें अपने विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर हम सबको मालूम है कि हमारे विश्वविद्यालय में बाहर से विद्यार्थी जाते हैं, उन तक भी इस हमारे हर एक विद्यार्थी तक भी ये बात पहुँचे, हमारे साहबजादों का त्याग और बलिदान की कथा हम उन तक भी पहुँचाएं, ये भी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए देखिए आजकल जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। कुछ कोर्सेज होते हैं कि क्रेडिट, जैसे हमारे यहाँ जो पीजी प्रोग्राम है इसमें हम जितने कोर्सेज चला रहे हैं, जो ऑफर कर रहे हैं वो क्रेडिट कोर्सेज है। हम देखेंगे कि बहुत सारे जिनमें जिनकी उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलती है, उनके मार्क्स में, उनके क्रेडिट एक्यूमुलेट नहीं होगी, लेकिन तो नॉन क्रेडिट कोर्स के रूप में उनको पढ़ाया जाता है। आज ये भी एक समय है हमें इस तरह का निर्णय लेने का कि हम इस तरह की जो अच्छी अच्छी बातें, जो त्याग और बलिदान जो हमारे साहबजादों ने और हमारे सिख समुदाय के अन्य लोगों ने जिस तरह का त्याग और बलिदान दिया है उसको हम नॉन क्रेडिट कोर्स के रूप में अपने विश्वविद्यालय में चलाएं, जिससे कि बाहर के विद्यार्थी जो पंजाब में आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको भी पंजाब की संस्कृति, पंजाब का त्याग, पंजाब का बलिदान, हमारे सिख समाज का बलिदान त्याग हम अन्य लोगों, समाज के, हमारे कम्युनिटी के, अन्य कम्युनिटी के लोगों के तक भी पहुँचे, जिससे वो प्रेरणा ले सके और हमारे पंजाब की पावन भूमि के प्रति उन देश के अन्य हिस्सों के लोगों में पंजाब की त्याग, पंजाब की पवित्र भूमि के प्रति उनका स्नेह बढ़े, उनका आदर बढ़े, और जिससे कि हमारी पंजाब की जो ये खूबियाँ हैं, सांस्कृतिक विरासत है, वो
हमेशा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहे, इसके लिए इस कार्यक्रम का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं भारत सरकार का आभारी हूं जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को केवल केंद्रीय संस्थानों में ही नहीं बल्कि अन्य राज्य स्टेट, जैसे मैं अभी उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का, यहाँ ये एक सप्ताह का कार्यक्रम। मैं यहाँ जबलपुर यूनिवर्सिटी में था, यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट में प्रोफेसर संधू साहब, उन्होंने 30 तारीख को यहाँ पर, ये 24 को कार्यक्रम यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया और पता चला कि मैं जबलपुर में, उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया था। तो इस तरह पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे समाज बलिदान दिया और जो हमारे समाज की पहले की जो घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं को पुनर्जीवित करना हम सब के लिए लाभदायक होने के साथ साथ पूरी मानवता के लिए ये लाभदायक है। और ये एक ऐसी घटना है जो कालजयी है। ये हमेशा इसको कालजयी करना पड़ेगा। हमेशा अपने युवा आगे आने वाली पीढ़ियों को इस ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं से, ऐसे बयानों से हमें सुपरिचित कराना। इसमें विश्वविद्यालय बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा सकता है। बाकी अन्य लोगों का उनको बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को, अभी छुट्टियां चल रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने इस कार्यक्रम को का संचालन किया। तो सर पन्नू साहब को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा विषय रखा। वो हमेशा अच्छा बोलते हैं, मैं उनको सुन नहीं पाया, आवाज़ आपकी बहुत धीमी आ रही थी, लेकिन आप हमेशा बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨੌਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਧੀਵਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਅਣਗੋਲੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जाने बचा चले, सिक्की की नींव हम है सरों पर उठा चले, गुरियाई का ये किस्सा जहां में बना चले, सिक्कों की सल्तनत का ये पौधा लगा चले, गद्दी से ताजो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया से जालमों का निशान तक मिटाएगी, दुनिया से जालमों का निशान तक मिटाएगी। मैं हुण सद्दा दिंदी हाँ मेरे विभाग के मेरे सहयोगी अध्यापक डॉक्टर अमनदीप जी नूं कि ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਡੀਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਤੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੁਲਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਚੰਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲਾਲ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਦੋ ਸੁੱਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਸੁੱਤੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਚਾਰੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਨ ਸੁੱਤੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਨ ਸੁੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगत तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय जन गण मंगल भाग्य जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।